بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج میں آپ کے لیے سبق آموز واقعہ لے کر حاضر ہوئی ہوں، مگر واقعہ سننے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ تو آئیے سنیے آج کا واقعہ۔ میں اور میرے دوست رات کو گھر کی جانب جا رہے تھے کہ اچانک ہماری نظر ایک گھر کے باہر پڑی، جہاں ایک آدمی اپنی بیٹی کو دھکے دے کر گھر سے باہر نکال رہا تھا اور ساتھ کہہ رہا تھا کہ چلی جا اس گھر سے، اگر تو میری ضرورتیں پوری نہیں کر سکتی تو۔ میں اس لڑکی اور اس بوڑھے آدمی کی عمر دیکھ کر اندازہ نہیں لگا پایا تھا کہ وہ اس کی بیٹی ہے یا بیوی۔ وہ لڑکی بیچاری رو رہی تھی کہ اللہ کے واسطے یہ ظلم نہ کرو، لیکن اس شخص نے اسے باہر پھینک کر دروازہ بند کر دیا۔ وہ کوئی بڑا ہی بے حس شخص معلوم ہو رہا تھا۔ اس بیچاری لڑکی کی حالت کافی قابل ترس تھی۔ سو میں اور میرے دوست اس کی جانب بڑھے اور ہم نے اس لڑکی سے پوچھا کہ سب ٹھیک ہے، تم رو کیوں رہی ہو؟ وہ بڑی بھولی سی لڑکی معلوم ہو رہی تھی۔ ہمیں دیکھتے ہی گھبرا کر چپ کر گئی۔ ہم نے بھانپ لیا تھا کہ وہ رات کے اس پہر ہمیں دیکھ کر گھبرا گئی ہے۔ تب میں نے اسے بڑے ہی آرام سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ آپ اس وقت اس طرح در بدر کیوں ہو گئی ہیں؟ ہمیں بتا دیں، شاید ہم آپ کی کوئی مدد کر سکیں۔ تب وہ پھر سے رونے لگی اور بولی کہ میں کیا بتاؤں، یہ میرا باپ ہے اور مجھ سے غلط کام کروانا چاہتا ہے۔ جب میں نے کرنے سے منع کر دیا تو اس نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ ہمیں اس کی بات پر خاصی حیرانی ہوئی کہ یہ کیسا باپ ہے، لیکن فی الوقت اس لڑکی کی مدد کرنا زیادہ ضروری تھا۔ سو میں نے اسے کہا کہ تم میرے ساتھ چلو، ہم تمہیں کوئی عزت کی نوکری دلوا دیں گے۔ وہ لڑکی شاید زیادہ پڑھی لکھی نہ تھی اور بڑی جلدی ہمدردی کی باتوں میں آ گئی اور بولی، ٹھیک ہے بابو، میں چلتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ ہی۔ ویسے بھی یہاں اس پہر میں نے اپنے آپ کو رہ کر مزید رسوا نہیں کرنا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ رات کے اس پہر اسے اپنے ساتھ کون لے کر جائے گا، کیونکہ ہر کوئی فیملی والا تھا اور لوگ تو طرح طرح کے سوال کرتے ہیں۔ تب میں نے اس کام کو سر انجام دینے کی حامی بھر لی اور اسے اپنے ساتھ گھر لے آیا اور خاموشی سے پچھلی جانب موجود کوارٹر میں سلا دیا۔ صبح اٹھتے ہی گھر میں واویلا سمجھ گیا تھا کہ یہ نئی لڑکی کون آ گئی ہے۔ تب میں نے انہیں بتایا کہ بیچاری مجبور تھی تو میں اسے یہاں لے آیا ہوں۔ اب یہ ہمارے ساتھ رہے گی اور گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹائے گی۔ میری بات پر سب خاموش ہو گئے تھے اور میں واپس کمرے میں لوٹ گیا۔ کمرے میں جاتے ہی میرے ذہن میں بار بار ایک ہی خیال آ رہا تھا کہ کیوں نہ میں اس لڑکی سے شادی کر لوں۔ دراصل میں ایک بہت ہی امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن میرے والدین بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے اور میں اپنے چچا اور چچی کے ساتھ رہتا تھا۔ چچا کچھ سال پہلے خاندانی دشمنی کی زد میں آ کر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ اب بچی چچی تو وہ میرا بالکل اپنے بچوں کی طرح خیال رکھتی تھی، لیکن کچھ عرصے پہلے اچانک میری طبیعت خراب ہونے لگی اور جب ڈاکٹر کے پاس گئے تو اس نے بتایا کہ مجھے کینسر کا مرض لاحق ہو گیا ہے اور اس میں میرے بچنے کی امید کم ہے۔ یہ کوئی خاموش کینسر ہے جو مجھے اندر ہی اندر کھا رہا ہے۔ میرے لیے یہ سچائی خاصی دل برداشتہ تھی۔ میری چچی اب میرا پہلے سے زیادہ خیال رکھنے لگی تھی۔ میں نے اپنے دوستوں کو بھی اس حوالے سے بتا دیا تھا۔ میرے دوستوں نے مجھے مشورہ دیا کہ میں شادی کر لوں، کیونکہ میری بیماری تقریباً آخری سٹیج پر تھی۔ ان کا خیال تھا کہ کیا پتہ میری کوئی اولاد ہو جائے جو میری ساری جائیداد کی وارث ہو۔ پہلے تو مجھے ان کا یہ مشورہ بہت ہی برا لگا تھا، کیونکہ میں کسی کی زندگی کیوں کر خراب کرتا، لیکن پھر جب انہوں نے مجھے سمجھایا تو مجھے ان کی بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ کچھ غلط تو نہیں کہہ رہے تھے، اور اب یہ لڑکی مجھے اپنی شریک حیات کے طور پر ہر لحاظ سے قبول تھی۔
सो मैंने उसी शाम उस लड़की को निकाह की पेशकश की और उसे कहा कि इस तरह तुम्हें एक इज्जत वाली जिंदगी मिल जाएगी। पहले तो वो मेरी बात पर रजामंद ना हुई, लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि ये फैसला उसकी जिंदगी को बेहतर बना सकता है तो उसने हाँ कर दी। लेकिन मैंने उसे अपनी बीमारी के हवाले से कभी भी सच्चाई नहीं बताई थी। हमारी शादी बड़ी सादगी के साथ हुई। मेरी चच्ची भी इस शादी से बहुत खुश नजर आ रही थी और मेरे लिए यही बहुत था, क्योंकि मेरी चच्ची ही मेरी माँ थी और मैं उन्हें किसी तौर भी नाराज नहीं कर सकता था। अनम अब मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। मगर शादी के बाद एक चीज बहुत अजीब थी कि मैं जब भी अपनी बीवी के पास जाने की कोशिश करता, वो मुझसे दूर भागने लगती और मुझसे ऐसे डरती जैसे मैं उसके साथ कोई बहुत बड़ी ज्यादती करने वाला हूं। एक रात तो उसने हद ही कर दी। जैसे ही मैं उसके पास गया, उसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। मैं उसको इस तरह रोते देखकर बहुत परेशान हो गया और उससे दूर भी हो गया। लेकिन फिर अगली रात जैसे ही मैं कमरे में आया, मैंने देखा कि हमारे बेड का एक पांव टूटा हुआ है। मैंने अपनी बीवी से पूछा कि ये कैसे हुआ, तो उसने कहा कि इसे कीड़ा लग रहा था। आज जब मैं बैठी तो टूट गया। मुझे समझ आ गई थी कि मेरी बीवी मुझे अपने करीब नहीं आने देना चाहती, क्योंकि ये इतना मजबूत बेड इतनी आसानी से नहीं टूट सकता था। शायद वो बहुत भोली और मासूम है, इसीलिए वो इन सब चीजों से डरती है। तो मैंने अब उसके कुर्बत के हुसूल की तलब छोड़ दी थी, क्योंकि मैं उसे किसी तरह भी गैर मुतमईन नहीं करना चाहता था। एक रोज मैं ऑफिस से जरा जल्दी आ गया, मगर जैसे ही मैं अपने कमरे की जानिब बढ़ा, मेरी नजर चच्ची के कमरे में पड़ी, जो मेरी बीवी को बहुत ढेर सारे पैसे पकड़ा रही थी। मैं तो एकदम हैरान ही रह गया कि वो मेरी बीवी को इतने सारे पैसे क्यों पकड़ा रही हैं। मैं जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ, दोनों मुझे देखकर शशदर रह गई। न जाने उनके जहनों में क्या चल रहा था और उन दोनों के बीच क्या हो रहा था। ये सारे मामलात मेरी समझ से तो बाहर थे। उनके चेहरे के तासुरात ऐसे थे जैसे मैंने उन्हें कोई बहुत बड़ा गुनाह करते पकड़ लिया हो। मैं उनके पास गया और बोला, ये पैसे किस चीज के हैं और आप मेरी बीवी को क्यों दे रही हैं? अनम यानी मेरी बीवी मेरी जानिब टुकर टुकर देखने लगी और तब ही मेरी चच्ची बोली कि मेरे पास पैसे पड़े हों तो खर्च हो जाते हैं। ये पैसे मैं उसके पास बतौर अमानत रखवा रही हूँ ताकि महफूज रहें और मैं खर्च भी ना करूं। उनकी ये बात मानने के लायक थी, क्योंकि मैं जानता था कि मेरी चच्ची शुरू से ही खासी शाह खर्च रही हैं। लेकिन न जाने क्यों अनम के चेहरे पर अभी भी हवाइयां उड़ी हुई थी। खैर, मैं इस मौजू को नजरअंदाज करता कमरे में चला गया। वक्त की सुइयां एक मर्तबा फिर से घूमने लगी। अब अनम जरा मुतमईन नजर आती थी। शायद उसे यकीन हो गया था कि मैं अब उसको हाथ तक नहीं लगाऊंगा, या शायद उसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत जागने लगी थी। अब तो मुझे भी एहसास नदामत होता कि मैंने अपनी बीमारी से मुताल्लिक इतनी बड़ी बात उससे छुपा रखी है। जिस दिन उसे सच्चाई मालूम हुई, उस दिन जाने उस मासूम के दिल पर क्या बीतेगी। कई बार मैंने हिम्मत जुटाकर उसे बताना चाहा, लेकिन फिर न जाने क्यों मेरे कदम रुक जाते थे। खैर, कुछ ही दिनों बाद मैंने फिर से उसका कुर्ब पाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ाए। मैंने सोच लिया था कि आज मैं उसे सब कुछ बता दूंगा। अब की बार उसने कोई बहाना तो नहीं बनाया, लेकिन उसने एक ऐसी हरकत की जिसकी मैं बिल्कुल भी तवक्को नहीं कर सकता था। उसने यकदम मुझे पीछे धकेल दिया और बोली कि मैं कभी तुम्हें अपने कुर्ब में नहीं भटकने दूंगी। तुमने ये शादी सिर्फ और सिर्फ बच्चे के हुसूल के लिए की है ना, मैं कभी तुम्हें औलाद नहीं दूंगी। उसकी ये बात सुनकर मेरा तो दिमाग ही चकरा गया और देखते ही देखते वो कमरे से बाहर भाग गई। पहले तो मुझे समझ नहीं आई उसे ये सब कैसे मालूम हुआ। मैं कुछ लम्हे यूं ही बेयकीनी किसी कैफियत में मुब्तला रहा और फिर
जैसे मुझे होश आया, मैं जल्दी से कमरे से बाहर निकला, लेकिन वो तब तक शायद घर से भी बाहर निकल चुकी थी। मैं उसे पागलों की तरह ढूंढता रहा, लेकिन मुझे कहीं भी उसका नामो निशान तक नहीं मिला। जाने वो इतनी बड़ी गलतफहमी का शिकार क्यों थी। बेशक मैंने उससे शायद इसी मकसद के तहत शादी की थी, लेकिन मैं उससे बेहद मोहब्बत भी करने लगा था। वो पूरी रात मैंने दीवानों की तरह सड़कों पर काटी। सुबह जब मैं वापस आया तो पूरे घर में आग की तरह ये खबर फैल चुकी थी कि मेरी बीवी रात को भाग गई है। मुलाजिम से लेकर मेरे अपनों तक हर कोई मुझे अजीब सी निगाहों से देख रहा था। मेरी चच्ची कह रही थी कि वो अपने किसी आशना के साथ चली गई है। हर किसी की जुबान पर अलग ही बात थी, और इस सब में मैं बिल्कुल खामोश था। वक्त के साथ मेरे अंदर से उसकी जुदाई का दर्द मिटता चला जा रहा था, और चच्ची की बातें भी मुझे सच लगने लगी थी। अनम शायद वाकई अपनी किसी आशना के साथ भाग गई होगी, तभी तो उसने दोबारा पीछे मुड़कर नहीं देखा। मगर सब में एक बात जो मुझे खासी हैरत में मुब्तला कर रही थी, वो मेरी बीमारी थी। मेरी तबीयत ज्यादा खराब नहीं हुई थी। डॉक्टर ने तो बताया था कि मेरी जिंदगी अब बस 1 या 2 साल की ही मेहमान रह गई है, और वक्त के साथ साथ मेरी तबीयत ज्यादा बिगड़ जाएगी। लेकिन अब तक तो मैं उसमें कोई ऐसा वाज़ेह बिगाड़ नहीं देख रहा था। मैंने सोचा क्यों ना किसी और डॉक्टर को दिखाऊं, और फिर मैं शहर के एक बहुत बड़े डॉक्टर के पास चला गया। उसने मेरे कुछ टेस्ट किए और उसके बाद एक ऐसी हैरत अंगेज बात बताई जिसे सुनकर मेरे तो जैसे पूरे जिस्म पर कोई बिजली आ गिरी थी। मैं सोच भी नहीं सकता था। मेरा सर दर्द से फटने लगा था। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मैं वहां से जल्दी से निकला और अंधाधुंध गाड़ी ड्राइव करता हुआ अपने फैमिली डॉक्टर के पास जा पहुंचा। मैं सीधा उसके ऑफिस में चला गया और रिपोर्ट उसकी टेबल पर दे मारी। वो मुझे इस कदर तैश में देखकर एकदम घबरा सा गया था। मैंने फौरन उसे पहले उसका गिरेबान जाकर पकड़ा और बोला, ये सब तुमने क्यों और किसके कहने पर किया है? वो हैरानी से मेरी जानिब देखते हुए बोला, क्या आप क्या कह रहे हैं? तब मैंने उसे कहा कि मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। मुझे डॉक्टर ने सब कुछ बता दिया है। मैं बिल्कुल ठीक हूं और मुझे ऐसी कोई बीमारी या मर्ज लाहक नहीं है जिसकी वजह से मेरी मौत हो जाए। डॉक्टर की आंखों में घबराहट देखने लायक थी। उसके इस डर ने उसकी सारी हकीकत मेरे सामने किताब की तरह खोल कर रखती थी। जब मैंने उसे एक मर्तबा पकड़ के झंझोड़ा, तब वो बोल उठा कि ये सब मैंने आपकी चच्ची के कहने पर किया। ये सुनकर मेरे हाथ एकदम लरज उठे थे। मेरी माँ बनने का दावा करने वाली वो औरत ऐसा कैसे कर सकती है? माजी में होने वाले सारे हालात और वाकयात मेरे सामने शीशे की तरह वाज़ेह हो गए थे, लेकिन अब भी मुझे इस बात पर यकीन नहीं आ रहा था। तो मैंने उसको झंझोड़ कर एक मर्तबा फिर से कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो। तब उसने कहा, नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये सब उन्होंने सिर्फ आपको डराने के लिए किया, ताकि आप डर जाएं और सारी जायदाद उनके बच्चों के नाम कर दें। डॉक्टर की यह बात सुनकर मुझे बहुत हैरानी हुई, क्योंकि इस कदर सप्पाक कोई कैसे हो सकता है। मैं डॉक्टर के पास गया तो बड़े चुस्त कदमों के साथ था, लेकिन मेरी वापसी बड़े ही ढीले कदमों के साथ हुई। मेरी आंखें अपनों की इतनी बड़ी सच्चाई जानने के बाद आप दीदा थी। जिंदगी दुख तो देती है, लेकिन जिंदगी इतने बड़े दुख भी दे सकती है, ये तो मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। मैं गाड़ी में बैठा, लेकिन मेरे अंदर गाड़ी चलाने की सकत नहीं थी। न जाने कितनी देर अस्पताल के बाहर यूं ही नीम मुर्दा वजूद के साथ बैठे। जब मुझे होश आया तो मैंने गाड़ी चलाई और घर पहुंच गया। घर गया तो मेरी चच्ची हस्बे मामूल मेरे आगे पीछे घूमने लगी और मुझे प्यार करने लगी, मेरे लिए खाना लगाने लगी। लेकिन जब मैंने पहले की तरह उन्हें तवज्जो न दी तो वो बोली कि क्या हुआ, तुम ठीक तो हो? मैंने भीगी हुई आंखों से उनकी जानिब देखा और बोला, जिनके अपने ही उनके साथ दुश्मनों जैसा सलूक करें
वो लोग कैसे ठीक हो सकते हैं? मेरी बात पर उनका ग्लास में पानी डालता हाथ एकदम रुक गया और अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए बोली कि तुम क्या कह रहे हो बेटा? तब मैंने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। मैं तो आपको माँ समझता था, हमेशा से। क्या कोई माँ अपने बेटे के साथ ऐसा कर सकती है? क्या कोई माँ अपने बच्चे के साथ इतनी बड़ी ज्यादती कर सकती है कि सिर्फ दौलत के हुसूल के लिए उसे इतनी बड़ी ज़हनी बीमारी में मुब्तला कर दे? मैंने कहा कि आपने मुझे मार डाला है चची। ये कहते हुए तो जैसे मेरी चीखें ही निकल गई थी। मेरी बातें सुनकर वो तो जैसे किसी सकते में चली गई। तब मैंने उन्हें कहा, आपने ही मेरी बीवी को मुझसे दूर किया है। माँ के रूप में आपने जो ममता दिखाई है, मुझे आपका एहसान जिंदगी भर नहीं उतार पाऊंगा। लेकिन अगर मुझे मेरी बीवी न मिली तो मैं अपने आप को तो क्या, आपको भी कभी माफ नहीं करूंगा। मेरी आंखें बेबसी के मारे आंसू बहाती जा रही थी। ये कहकर मैं वहां से उठ गया और कमरे में जाकर सारा सब तोड़कर न जाने कितनी देर रोता रहा। मैंने एक फैसला कर लिया था और इसी फैसले के तहत अगले ही दिन अपनी सारी जायदाद मैंने अपनी चची और उनके बच्चों के नाम करवा दी। वैसे भी मेरे लिए ये सब चीजें अब कोई मायने नहीं रखती थी और मेरी चच्ची ने इतना बड़ा ड्रामा इसी जायदाद के हुसूल के लिए ही तो रचाया था, जो मैंने उन्हें बिला झिझक दे दी थी। और फिर मैं अनम की तलाश में निकल पड़ा और दोबारा कभी घर लौट कर नहीं आया, क्योंकि अब मेरा रिश्तों पर से एतबार ही उठ गया था। दिन तेजी से गुजर रहे थे, लेकिन अनम का कोई अता पता नहीं मिल रहा था। मैं तो उसकी वापसी की उम्मीद खोता चला जा रहा था। जब तकरीबन 6 माह का अरसा गुजर गया तो मैंने सोचा, क्यों ना अखबार में इश्तिहार दूं, शायद वहीं से मेरी कोई मदद हो जाए। और फिर मैंने अनम के हवाले से अखबार में तलाश गुमशुदा का इश्तिहार दे दिया और अनम की खबर देने वाले के लिए चंद लाख का इनाम भी रख दिया, क्योंकि मैं जानता था कि कोई न कोई लालच में आकर जरूर मुझे अनम तक पहुंचा देगा। खबर छपने के अगले ही रोज मुझे इत्तला मिल गई कि अनम कहाँ है। वह दूसरे शहर में किसी के घर काम करती थी। मैं उसी दिन उसके पास गया और उस घर के मालिकान से बात की। पहले तो वो अनम को मेरे साथ भेजने पर रजामंद नहीं थे और ना ही मुझे अनम से मिलने दे रहे थे, लेकिन फिर मैंने अपना निकाहनामा दिखाया, तब जाकर उन्हें यकीन आया। अनम को मेरे सामने लाया गया तो वो मुझे देखते ही डर गई। उसका डरना बनता था, क्योंकि मेरी चच्ची ने उस बेचारी पर दिमागी टॉर्चर भी इस कदर किया था। मैं बड़े ही प्यार और तहम्मुल से उसके पास गया और उसे समझाया कि जैसा तुम सोच रही हो ऐसा कुछ नहीं है। ये सब कुछ मेरी चच्ची का रचाया हुआ एक खेल था, जो अब खुलकर सामने आ चुका है। वो मुझसे अभी भी डरी हुई थी। मैंने बहुत समझाया और उसे कहा कि तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा, तुम मेरे साथ चलो। लेकिन वो तो जैसे जिद पकड़कर बैठ गई थी। तभी उस घर की बड़ी बूढ़ी बी ने आकर उसे कहा कि बेटी, ये भला आदमी मालूम होता है, तुम चली जाओ इसके साथ। ये तुम्हारा शौहर है, अगर तुम इसके साथ न गई तो तुम एक बहुत बड़ा गुनाह करोगी। उनके प्यार करने और समझाने पर वो समझ गई और मेरे साथ चल पड़ी। अब मैं और वो अलग घर में रहने लगे थे। मैंने कभी मुड़कर अपनी चच्ची की जानिब नहीं देखा। अनम को मैंने एक बेहतरीन स्कूल में दाखिल करवा दिया ताकि वो अपनी तालीम मुकम्मल कर सके और मैं अपने काम में मसरूफ हो गया। अनम ने मुझे ये भी बताया कि मेरी चच्ची उसे पैसे दिया करती थी ताकि वो मुझसे दूर रहे, और चच्ची ने उसे ये बताया था कि मैं किसी बहुत बड़ी बीमारी में मुब्तला हूँ और जब औलाद हो गई तो मैं अनम को मार डालूंगा। इसी वजह से अनम उनकी बातों में आ गई थी और इस तरह के गलत कदम उठाने पर मजबूर हो गई थी। उस रोज बेड भी अनम ने खुद तोड़ा था, और वो भी चच्ची के कहने पर। ये सब हकीकतें मेरे लिए खासी दिल बर्दाश्ता थी। माँ के रूप में वो कितनी बड़ी चालें चल रही थी, ये तो मैं जानता ही नहीं था। लेकिन मैंने दिल पर पत्थर रखकर हर एक हकीकत को तस्लीम कर लिया था। वक्त गुजरता जा रहा था और अनम
اور میرے بیچ محبت اور اعتماد کا رشتہ بھی بلند ہو رہا تھا۔ اب انم نہ مجھ سے ڈرتی تھی اور نہ ہی مجھے پاس آنے سے روکتی تھی۔ اور پھر اچانک ایک روز ہمیں خبر ملی کہ چچی کی طبیعت بہت خراب ہے۔ میں جلدی سے ان کے پاس اسپتال جا پہنچا۔ میرے ساتھ انم بھی تھی۔ چچی ہم دونوں کو دیکھ کر آنسو بہانے لگی تھی۔ ان کی حالت واقعی خراب تھی۔ ڈاکٹرز نے بتایا تھا کہ انہیں کینسر ہو گیا ہے، اور وہ بھی آخری سٹیج پر، اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ ان کی ایک بیٹی اور بیٹا میرے سامنے بلک بلک کر رو رہے تھے۔ چچی نے ہم دونوں میاں بیوی سے معافی مانگی۔ ان کی آنکھوں میں بے تحاشا ندامت تھی، جسے دیکھ کر مجھے قدرت کے انصاف پر یقین ہو گیا۔ جس بیماری کا انہوں نے مجھ پر جھوٹا دعویٰ کیا تھا، اللہ نے وہی بیماری ان پر سچ ثابت کر دی۔ میں اور انم ان کا خیال کرنے کے لیے ان کے پاس ہی رک گئے تھے۔ بہت دن تک میری چچی یوں ہی بستر پر معذوروں کی طرح زندگی گزارتی رہی، اور پھر کچھ ہی دنوں بعد وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ مجھے ان کی موت کا اتنا ہی دکھ تھا جتنا ایک اولاد کو اپنی ماں کی موت کا دکھ ہوتا ہے۔ میں نے اور میری بیوی نے ان کے بچوں کو اپنی اولاد کی طرح پالا، اور اب ہمارا اپنا بھی ایک بیٹا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، زندگی اب ایک بہترین ڈگر پر چل رہی ہے۔ آپ سب سے میری درخواست ہے کہ میری چچی کی مغفرت کے لیے ضرور دعا کیجیے گا۔ کیا پتہ آپ میں سے کس کی دعا۔ اگر آپ کو آج کا واقعہ پسند آیا ہے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہماری ہر انفارمیشن ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔